Hello students, this is Garima Agarwal and today I bring you a topic of HCF from class 5 and 6 mathematics. HCF. Today we will discuss what is HCF and what are the methods to find out the HCF of a given numbers. So let's begin today without wasting the time. What is HCF? Here, what is HCF? HCF means highest common factor. It is the highest number or the greatest number which can divide the given numbers. जो given numbers को divide कर सकता है ऐसा greatest number जो होता है that is HCF. Secondly, HCF is also known as GCD. तो other name of HCF is GCD. It is also known as greatest common divisor. So HCF वो नंबर होता है जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें जो कॉमन नंबर में हाईएस्ट नंबर होता है दैट इज HCF. सो विथ फ्यू एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स. नाउ there are three methods to find out the HCF of the given numbers. First is factor method, second is prime factorization method, and the third one is continued division method. We will discuss all the three methods today. So let's begin with the first method, that is factor method. Factor method में we have to find the factors of the given number. सबसे पहले हम दोनों given numbers का factors find out करेंगे और जो common factors होंगे उनमें जो highest number होगा that will be the HCF. So we have taken the example here. Suppose we have to find the HCF of 8 and 12. So ऐसे possible outcomes जिनको multiply करके 8 आए हम पहले वही लिखेंगे. तो 1 multiply by 8, 2 multiply by 4. और कोई outcome ऐसा नहीं आएगा जिनको multiply करके 8 आए. So the factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. हर नंबर का 1 और द नंबर जो होगा इटसेल्फ वो दो फैक्टर्स तो होंगे ही. अब 12 का देखते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4. इसके अलावा ऐसा कोई भी आउटकम ऐसा नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए. सो द आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. सो द फैक्टर्स ऑफ 12 आर ऑल्सो वी हैव नाउ. Common factors of 8 and 12. The third step is you have to find the common factors of the two numbers. So जो factors दोनों में common है वो 1 होगा, 2 होगा and 4. क्योंकि 3 हमारा 8 का factor नहीं होता और 6 और 12 भी हमारे 8 के factors नहीं होते हैं. तो 1, 2 and 4 are the common factors. So common factors are 1, 2 and 4. और हाईएस्ट नंबर इसमें जो होगा वो HCF होगा. सो 4 इज द हाईएस्ट नंबर. सो द HCF इज 4. इन दिस वे यू कैन फाइंड द HCF अंडर फैक्टर मेथड. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हेयर. सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 27 and 36 बाय फैक्टर मेथड. वी हैव टू फाइंड हियर HCF ऑफ 36 and 27. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, we will find the factors of 27. Factors of 27 are 1, 3, 9 and 27 itself. Now the factors of 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. These are the possible outcomes of 36. तो factors of 36 means ऐसे कौन से numbers हैं जिनके टेबल में 36 आता है. तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ 36. अब आप देखिए 27 और 36 में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं. केवल 1 दोनों में कॉमन है, 3 और 9. 3 कॉमन फैक्टर्स आर देयर, 1, 3 एंड 9. और इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9. सो द HCF ऑफ 27 एंड 36 इज 9. क्योंकि 9 इन तीनों नंबर्स में कॉमन है. 1, 3 एंड 9 आर द कॉमन फैक्टर्स एंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF. सो द HCF इज 9. In this way, you can find HCF under factor method. Now, the next method.
नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जितने नंबर्स गिवन होंगे आप उनके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी नंबर्स की, उनमें कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द HCF. So now let's see how you will find with the help of one example. Here we have to find the HCF of 72 and 48. So we have to find the prime factorization of 72 and then the prime factorization of 48. So prime factorization of 72 is, we have to find 2 मल्टीप्लाई बाय 20 36. 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 36. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18 एंड 3 3s are 9 एंड 3 1 टाइम्स इज 3. सो ये जो नंबर्स आए हैं हमारे इधर साइड पे, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. आप देखिए तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. और इधर आप लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ये प्राइम फैक्टराइजेशन 72 की है. नाउ वी विल बिगन विथ 48. तो 2 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 12, देन 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 3 1s are 3. तो ये नंबर्स आ गए हैं 2 2 अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब आप इनमें कॉमन बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे. हमने ये एक पेयर बनाया इधर, दूसरा पेयर बनाया है, देन थर्ड पेयर एंड देन दिस वन इज फोर्थ पेयर. इन चारों पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है अब हमें एंड में. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. तो HCF is 24. In this way you first have to find the prime factorization and then make the pairs, get the highest number product as HCF. One more example we will take here. We have to find the HCF of 20, 28 and 36. One by one we have taken the prime factorization of 20, then 28 and then 36. फिर हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन को इधर नोट किया है. 20 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 28 2 multiply by 2 multiply by 7, then 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. तीनों नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी. देन मेक द पेयर्स ऑफ द कॉमन. फर्स्ट कॉमन है 2 और सेकेंड नंबर भी कॉमन है जो तीनों में है, वो है 2. सो 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4. सो द प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव टेकन ऑफ द 3 नंबर्स, देन वी हैव मेक द पेयर्स and then multiply the pairs and get the answer as 4. So the HCF of 20, 28 and 36 is 4. In this way you can find HCF by using prime factorization method. Now we will move towards the third method, that is common division method. In continued division method. Continued division method में आप नंबर्स को कंटिन्यू डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. जिस भी डिवाइज़र से हमने लास्ट में डिवाइड किया है दैट विल बी द HCF. एंड वी विल स्टार्ट विद द बिगर नंबर इज द डिविडेंड एंड द स्मॉलर नंबर विद द डिवाइज़र. हम बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से. ठीक, जो डिवाइड करके स्मॉलर नंबर स्टेप 1 में होगा उसका जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइज़र बनाएंगे. Let's see how we will do. Suppose here we have to find the HCF of 75 and 180. तो हमने क्या किया, बिगर नंबर 180 है, 180 को डिविडेंड बनाया और 75 स्मॉलर है तो 75 को डिवाइज़र बनाया. अब 180 को हमें डिवाइड करना है 75 से. 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि 3 टाइम्स अगर किया तो 180 से ग्रेटर आएगा. तो 75 2s are 150 we have written here. Now subtract them both. 180 में से 150 को माइनस करेंगे, 30 आंसर आया. अब 30 जो रिमाइंडर बचेगा वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइज़र होगा और पहले वाला डिवाइज़र डिविडेंड बन जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है.
अब 30 से डिवाइड करेंगे, 32 टाइम्स 60 करेंगे, क्योंकि 33 ज़ा तो 90 होता है, दैट विल बी ग्रेटर. तो 32 ज़ा 60. नाउ 75 माइनस 60 इज 15. अब अगेन रिमाइंडर जो बचा वो हमारा डिवाइज़र है और पहले वाला डिवाइज़र डिविडेंड बन गया इधर. नाउ 15 टू ज़ा 30. तो लास्ट स्टेप में हमने जिस नंबर से डिवाइड किया है दैट इज़ द HCF. तो 15 इज़ द HCF. In this way you can find HCF by continued division method. Let's take one more example here. We have to find the factor HCF of 45, 60 and 75. जब 3 नंबर्स होंगे तो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स को लेना है. तो यहाँ पर हम 45 और 60 को पहले लेंगे. तो 45 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए. 45 वन ज़ा 45, 45 टू ज़ा तो 90 होता है, 90 विल बी ग्रेटर. तो 60 माइनस 45 इज 15. अब रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन गया और पहले वाला जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया. तो 15 को डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करना है हमें अब 45 को. तो 15 3 ज़ा 45, रिमाइंडर 0 आ गया. अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, बट रिमाइंडर 0 आ गया है. तो 15 आंसर आया यहाँ पर हमारा. अब 15 के साथ हमें जो थर्ड नंबर अभी 75 बचा था उसका HCF निकालना है. फिर अगेन वी विल डिवाइड. 15 को डिवाइड कर 75 को डिवाइड करना है 15 से. तो 15 5 ज़ा 75. अब कोई नंबर नहीं है, तीनों को डिवाइड किया 1 बाय 1, रिमाइंडर 0 आया. एंड में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है मीन्स 15, दैट विल बी द HCF. In this way you can find out the HCF of 3 numbers. You can practice as many sums as you can. For problems you can contact me. Practice it with the help of the worksheet that I have shared with you. Only these 3 methods I have covered for the practice. Next we will do in the next session. Till then, take care of yourself. Stay in, stay safe. Thanks for watching. Thank you.